Good morning, everyone. Welcome back to our online class. You might be thinking what happened yesterday with the video. Do you think? Do you think? Yes, so let me tell you. Yesterday, due to lack of memory or due to low space in mobile, our video was suddenly paused and stopped. And because of that our reading was also incomplete. Okay, sorry for that thing. Let's start reading again. Okay, so open your book and read along with me. Okay, our chapter is circle, unit 5, lesson B, circle. One day Mohini was sitting with her grandmother. Grandmother drew a circle. Can you draw a circle, Mohini? Yes, I can. Soon Mohini drew a circle. Now I will draw a ball. Till this point we yesterday read. Okay. Grandmother drew 3 lines on the circle. Mohini drew 3 lines on her circle. It really looked like a ball. REALLY, really, LOOKED, looked like a ball. Now let's draw a balloon. BALLON, balloon. Grandmother added ADDED, added a ZIG, zigzag line to the circle. Oh, it really looks like a balloon. Mohini CLAPPED, clapped with JOY, joy. Mohini clapped with joy. Mohini drew MANY, many circles. Big, 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 and SMALL, small circles. Big and small circles. RED, red, BLUE, blue, GREEN, green, and YELLOW, yellow circles. Red, blue, green, and yellow circles. She also added zigzag lines to these. THESE, these. She also added zigzag lines to these. And now there were many balloons. MANY, many balloons. And now there were many balloons. Can you draw SOMETHING, something? SOMETHING, something. ELSE, else, with a circle. Now can you draw something else with a circle? Asked grandmother. Yes, said, SAID, said Mohini. Yes, said Mohini. She drew a WHEEL, wheel, a MOON, moon, a SUN, sun, a RABBIT, rabbit, and her OWN, own, FACE, face, own face. She drew a wheel, a moon, a sun, a rabbit, and her own face.
ओके, नाउ यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग। ओके, आपको प्रैक्टिस करनी है रीडिंग की। मैंने जैसे आपको पहले भी बोला था, डेली आपने एक पेज रीड करना है, एक पोयम या फिर एक लेसन डेली आपको रीड करना है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। आज क्या हम देखेंगे, न्यू वर्ड्स देखेंगे। नाउ हियर वी कंप्लीटेड अवर book reading and explanation of this chapter. Okay, I think we have to complete this remaining book exercise. Okay, let's do it. First new words: BALL ball, BLUE blue, CIRCLE circle, LINE line, CMOON moon. Okay, ball, blue, circle, lines, moon. Let's read. I can draw a circle. मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ. The moon is round. moon कैसा है? Round मतलब गोल है. Okay, now turn your page. Reading is fun. What did grandmother and मोहिनी draw first? ग्रैंडमदर और मोहिनी ने क्या ड्रॉ किया था? सबसे पहले ग्रैंडमदर ने और मोहिनी ने क्या ड्रॉ किया था? सी, अब आपको आंसर कैसे लिखना है? देखो, क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है, व्हाट डिड ग्रैंडमदर एंड मोहिनी ड्रॉ, इसमें ही क्या है? आंसर है. क्या है? आंसर है. अभी कैसे? ये क्या है? व्हाट मतलब क्या? ग्रैंडमदर एंड मोहिनी ड्रॉ फर्स्ट. व्हाट डिड ग्रैंडमदर एंड मोहिनी ड्रॉ फर्स्ट मतलब ग्रैंडमदर और मोहिनी ने पहले क्या ड्रॉ किया था. ओके, तो अब आंसर कैसे लिखेंगे? यहाँ से स्टार्ट. हम आंसर कैसे देंगे? ग्रैंडमदर और मोहिनी ने सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ किया था. तो देखो, क्वेश्चन में ही आधा आंसर छुपा हुआ है. ग्रैंडमदर एंड मोहिनी, ड्रॉ की जगह पे क्या आएगा? ड्रू आएगा, पास्ट फॉर्म आएगा उसका. ग्रैंडमदर एंड मोहिनी ड्रू, क्या ड्रॉ किया था? अ सर्कल. इसके बीच में ड्रॉ के बाद क्या आएगा? अ सर्कल फर्स्ट. हो गया कि नहीं आंसर? मतलब आपको इसमें सिर्फ क्या लिखना है? अ सर्कल. ग्रैंडमदर एंड मोहिनी ड्रू अ सर्कल फर्स्ट. इजंट इट गुड? अमेजिंग. ये क्वेश्चन में आपका आधा आंसर छुपा हुआ होता है. आपको बस क्या करना है, क्वेश्चन को, इसके लिए व्हाट इज इम्पोर्टेंट, यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? आपको सबसे पहले रीडिंग आना चाहिए और रीडिंग के बाद उस क्वेश्चन को समझना चाहिए, या फिर वो रीडिंग के बाद वो क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए. ओके, और समझ में कब आएगा? जब आप रीडिंग अच्छे से करोगे और न्यू वर्ड्स लर्न करोगे, चैप्टर रीड करोगे, है कि नहीं? ओके, देखो फिर से. व्हाट डिड ग्रैंडमदर एंड मोहिनी ड्रॉ फर्स्ट. ग्रैंडमदर ने और मोहिनी ने पहले क्या ड्रॉ किया? ग्रैंडमदर एंड मोहिनी ड्रू अ सर्कल फर्स्ट. ग्रैंडमदर और मोहिनी ने सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ किया. ओके, सेकेंड क्वेश्चन. What were the colors of the balloons that मोहिनी drew? क्या है क्वेश्चन का मीनिंग? मोहिनी ने जो बलून्स ड्रॉ किए थे उनके कलर्स कौन से थे, या फिर वो कौन से कलर के थे? तो क्या आएगा आंसर? द बलून्स दैट मोहिनी, नहीं सॉरी, द कलर्स ऑफ द बलून्स दैट मोहिनी ड्रू वर, कौन से कलर थे वो? रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो. कौन से कलर थे? रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो. तो आंसर क्या होगा? द कलर्स ऑफ द बलून्स दैट मोहिनी ड्रू आर रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो. ओके, इसका मतलब आपको सिर्फ क्या याद करना है? रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो. आपको ये 4 कलर्स याद रखने हैं. ओके, समझ में आया? वेरी गुड.
Now see the next part. Let's draw. In the circles below, draw what grandmother drew, what Mohini drew. Now in these two circles you have to draw that things which grandmother and Mohini drew at that time. Okay, or drew in the lesson. अभी ये दो सर्कल में आपको क्या करना है? What grandmother drew. ग्रैंडमदर ने क्या ड्रॉ किया था वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है. एंड व्हाट मोहिनी ड्रू, और मोहिनी ने क्या ड्रॉ किया था वो आपको ये सर्कल में ड्रॉ करना है. यू कैन डू दिस एक्टिविटी एज होमवर्क. आप ये एक्टिविटी एज होमवर्क कर सकते हो. लुक एट दिस शेप्स. अभी नीचे कुछ शेप्स दिए हैं. टेल मी विच शेप इज दिस? यस, दिस इज और ट्रायंगल. क्या है ये? ट्रायंगल. इसमें 3 एंगल होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ट्रायंगल. ओके, दिस इज द शेप ऑफ, क्या है ये? स्क्वायर. कौन सा शेप है ये? स्क्वायर. एंड दिस इज द शेप ऑफ रेक्टेंगल. कौन सा शेप है ये? रेक्टेंगल. नाउ सी, ट्राई मेकिंग दीज शेप्स इनटू. अभी आपको ये शेप्स यूज करके क्या करना है? और किसके लिए यूज करने हैं? और कार के लिए. और हाउस. देखो यहाँ पे एक हाउस दिया है ना. ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल, ये तीनों शेप मिला के यहाँ पे क्या किया है? उससे एक हाउस ड्रॉ किया है. वैसे ही आपको ये शेप्स की हेल्प से ये पिक्चर ड्रॉ करने हैं. अ कार, अ हाउस, अ डोर, एनीथिंग एल्स. ओके, कार, हाउस, डोर या फिर कुछ अलग पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं. ड्रॉ अलोंग द डॉट्स. सो व्हाट डिड यू मेक? कैन यू मेक साउंड्स लाइक अ ट्रेन? नाउ यू हैव टू जॉइन द डॉट्स लाइक दिस. ओके, आपको ये डॉट्स ऐसे जॉइन करने हैं और किसका पिक्चर बनता है फिर? एक ट्रेन का. कैन यू मेक साउंड्स लाइक अ ट्रेन? क्या आप एक ट्रेन की आवाज़ निकाल सकते हो? यस और नो? यस. कैसी आवाज़ होती है? कैसी आवाज़ होती है ट्रेन की? छुक 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 छुक, ऐसी आवाज़ होती है ना. ओके, तो आपको वैसी अपने मम्मी को या फिर दीदी को, फ्रेंड्स को वैसी आवाज़ निकाल के दिखानी है. नाउ सी दिस. ड्रॉ अ फेस ऑन द बलून बिलो. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. ये जो आप 2 बलून देख रहे हैं उसमें आपको क्या करना है? फेस ड्रॉ करना है, जैसे कि ये बलून में किया है. कैसा फेस है ये? दिस इज़ अ फेस लाइक एंग्री मैन. किसके जैसे दिख रहा है ये? एंग्री मैन के जैसे. या फिर कैसे दिख रहा है? चोर के जैसे दिख रहा है ना. यस, एंग्री मैन के जैसे ये फेस निकाला है. तो आपको यहाँ पे दूसरा फेस ड्रॉ करना है. एज यू विश, आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हो. देखो, जस्ट लाइक दिस. ये हैप्पी लग रहा है ना. ये एंग्री है इसलिए हमने ये हैप्पी बनाया. आप इसकी जगह पे कोई भी फेस बना सकते हो. ओके, गॉट इट चिल्ड्रन? ड्रॉ अ फेस हियर एज यू विश. ओके, नाउ मूव टूवर्ड्स. लेट्स रीड एंड राइट. Here some letters are given. A, B, C, D, E, F.
अभी आपको क्या करना है, ये डॉट्स को ज्वाइन करके ये लेटर्स कंप्लीट करने हैं. ओके, दिस एक्टिविटी इज ऑल्सो फॉर यू एज होमवर्क. ओके, ABCDEF, GHIJKL, MNOPQR. दिस पेज इज फॉर योर होमवर्क. क्या करना है आपको इसमें, आपको ये अल्फ़ाबेट डॉट्स ज्वाइन करके ये पूरे अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट करने हैं. एंड से इट अलाउड ड्यूरिंग राइटिंग. लिखते लिखते आपको ये जोर से रीड करने हैं. ओके, now here some pictures are given. Let's read what are they. MANGO, mango. NUT, nut. ORANGE, orange. PEACH, peach. Mango, nut, orange, peach. Here also you have to join the dot and complete the word. Look at the picture and fill in the blanks. यहाँ पे आपको पिक्चर देखना है और ये जो ब्लैंक प्लेसेस हैं उनको भरना है, फिल करना है. Let me show you one. Okay, whose picture is this? This is a picture of dog. DOG, dog. So here D is already given. DOG, dog. Okay. Now this is picture of bull. BULL, bull. B is already given, so we have to write here BULL, bull. Okay, same thing you have to do here. Okay, this page is also for your homework, as homework. This is picture of elephant. ELEPHANT, ELEPHANT. Okay, this is owl. OWL, owl. HORAC, horse. CAT, cat. Here we completed our chapter. Okay, explanations are done, reading is done, book exercise is also done. Okay, now what is your homework? This is your homework on page number 58. Page number 58, you have to draw here pictures which grandma and Mohini drew. After that, on your drawing book you have to draw these pictures with the help of these shapes. Okay, now complete this picture by joining dots. Here also you have to draw a face on balloon. After that, read these alphabets, read these letters and complete by joining the dots. This whole page is for your homework, and this next page is also for your homework. You have to join the dots and complete the word. And here you have to fill in the blank place. Okay, now let's do something in our notebook. First of all, write day and date. Today is Friday. Today's date is 16th of October 2020. Unit 5, lesson B, circle. Firstly we will write the new words. Okay, listen me carefully. CIRCLE, circle. circle मतलब ऐसे राउंड शेप या फिर गोल. GRANDMOTHER, grandmother. DREW, drew. grandmother मतलब दादी नानी. DREW, drew मतलब ड्रॉ करना, पिक्चर ड्रॉ करना. ड्रू क्या है, उसका पास्ट फॉर्म है. SOON, सून मतलब जल्दी से. WHEEL, व्हील. व्हील मतलब पहिया या फिर चक्का.
SUN सन, सन मतलब सूरज। FACE फेस, फेस मतलब चेहरा। LINES लाइन्स, लाइन्स मतलब ऐसी लाइन होती है ना, रेख, रेशा। जिगजैग, ZIG जिग, ZAG जैग, जिगजैग मतलब ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लाइन जो होती है उसे हम जिगजैग कहते हैं। CLAPPED क्लैप, क्लैप मतलब ताली, तालियाँ, या फिर क्लैप्ड, ये क्या है, ये भी उसका पास्ट फॉर्म है। क्लैप का पास्ट फॉर्म क्लैप्ड। JOY जॉय, जॉय मतलब खुशी से। MOON मून मतलब चंदा मामा। RABBIT रैबिट, रैबिट मतलब क्या है, रैबिट, रैबिट मतलब खरगोश। कितना इजी है। यस, वेरी गुड। Now this is enough for today. You have to write these new words in your notebook. We will see the next exercise in our next period. Okay, this is enough for today. But one more thing I want to tell you again, do practice of reading. Reading की practice करो. Reading is must now. Okay. Okay, bye. Thank you and have a nice day.